Hello student, today I am going to summarize this chapter history tribal during the colonial rules. And how the tribal people face different types of problem due to the Britishers' interference in the forest. And all of you know that the tribals main homeland is the forest. Okay, for early times the tribes have been located in dense forest and the hills which are cut off from outside life. Tribal society, what is the tribal society? What is their standard of living? What is their economic? What is their geographic location? Tribals often practice shifting cultivation, clearing a field by slash and burn methods. Tribal society tend to the egalitarian means agriculture. Its leadership being based on ties of kingship and personality rather than on hereditary status. It means in their society that there is a head of their member and not in the hereditary, and he is also known as the kingship of their society. Changes in tribal society. When the changes after the interference of the Britishers. At the same time, Christian missionaries were working in the tribals area to convert tribals to Christianity. As such, many tribal were converted on the promise of land, education, better social status and money. But many were delusioned because most of the promises, delusion means sapna dikhana. Most of the promises were not kept and they reverted to their original religion. It means सपना दिखा के क्रिश्चियन लोग क्या किए, इनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेट किए, बहुत ही एक्सप्लॉइट किए इनको. ट्राइब्स इन द 19th century. The British dominance in India was almost complete by the middle of the 19th century. Their main purpose was to grow crops. Changes in tribal economics and how the changes in economics, the tribal economic were self-sufficient as they subsisted on the forest product and farming. It means totally dependence on forest and forest product, and they also fulfill their needs. Lifestyle of tribal groups. What is the lifestyle for tribal group? Different types of tribals in different region who live there, also known at the different names. That the some example: Gond, Santhal, Munda, Oraon, Khasis. These are name of the tribals. Practicing shifting cultivations. Mainly tribals practicing shifting cultivation, and all of you know that what is the shifting cultivation. Shifting cultivation means that the tribal clean some patches of the land and they grow some crops, and after 2 or 3 years they abandon this plot and move to other place. This is called shifting cultivation, and also that the slash and burn cultivation. Hunting and gathering. Main occupation, main work of the tribal is the hunting and gathering. जानवरों का शिकार करना और उनका मीट और फ्लैश को खाना. Many tribals were groups dependent on hunting and gathering forest product. One such tribe was the Gond of Odisha.
द गोंड बिलीव इन कलेक्टिव हंटिंग डिवाइडिंग द मीटिंग। इट मीन्स गोंड बिलीव था कि कलेक्टिवली ये लोग साथ में मिलके हंटिंग करते थे और उससे जो मीट का होता था ये वो लोग इक्वली डिवाइड कर लेते थे अपने ग्रुप में, अपने लोगों में। एंड आफ्टर सम टाइम द गोंड गेट्स द सीरियल लाइक राइस एंड वीट। ये लोग क्या करते थे, राइस और वीट को एक्सचेंज करके ये लोग का राइस और वीट का कोई भी ग्रुप अगर राइस का कल्टीवेशन किया और कोई ग्रुप वीट का कल्टीवेशन किया तो ये लोग एक्सचेंज करके एक दूसरे से वो ले लेते थे, इनका काम उससे हो जाता था। द ट्राइब्स नाउ इंक्रीजली बिकेम डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर एंड मनी लेंडर। फिर इसके बाद क्या हो गया कि इन लोगों का जो कल्टीवेशन था वो मेनली किस पे डिपेंड हो गया, मनी लेंडर और ट्रेडर के ऊपर डिपेंड हो गया। और ये लोग क्या करते थे, ट्राइबल्स को एक ऑफ़र देते थे कि इतना तुमको लोन देंगे, उसके बदले में तुम लोगों को टैक्स तुमको ज़्यादा उसको जो भी लोन देंगे वो ज़्यादा इन लोगों को पे करना पड़ता था। इसलिए इन लोगों का कंडीशन, ट्राइबल्स का बहुत ही बुरा कंडीशन इन लोगों का हो गया आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। एंड द नेक्स्ट वर्क इज़ सम हर्डेड एनिमल। हर्डेड मीन्स मतलब कि कैसे ये लोग जानवरों का रियरिंग करते थे और उससे उसके प्रोडक्ट को वो लोग सेल करते थे, उससे उन लोग को मनी मिलता था। मेनी ट्राइबल्स ग्रुप वेयर पास्टोरल दैट दीज मूव विद देयर हर्ड ऑफ द कैटल। और ये लोग क्या करते हैं, एक झुंड में एक जगह से दूसरे जगह अपने कैटल को लेके जाते थे, जहाँ पे पास्चर एरिया या जहाँ पे जानवरों को खाने के लिए जो भी ग्रास, जो भी फूड रहा, वो उस एरिया में अपने जानवरों के एक ग्रुप बना के, झुंड बना के वहाँ पे वो लोग जाते थे। टेकिंग टू सेटल कल्टीवेशन, यानी कि कुछ समय बाद इन लोगों का क्या हुआ कि ये लोग कल्टीवेशन एरिया में कैसे, ये लोग 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इन लोगों का सेटलमेंट कल्टीवेशन एरिया में इन लोगों का होने लगा। द गोंड एंड संथाल ऑल्सो नोन। और जो इस ट्राइबल्स ग्रुप में सबसे सिविलाइज्ड जो ग्रुप थे वो थे गोंड एंड संथाल। जो ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और हंटर एंड गैदरिंग, ये दोनों काम ये लोग करते थे, लेकिन ये लोग सिविलाइज्ड मैनर में काम करते थे कंपेरेटिव टू अदर ट्राइबल्स। द ट्राइबल्स एंड द ब्रिटिश। अब ट्राइबल्स और ब्रिटिश का क्या कनेक्शन हुआ, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल द ट्राइबल्स लॉस्ट द अथॉरिटी। और ट्राइबल्स का जो अथॉरिटी थी, जो राइट थी फॉरेस्ट पे, वो इंटरफेरेंस के बाद, ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस के बाद इन लोगों का ख़त्म होने लगा। और ये लोग जो स्लैश एंड बर्न यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो ये लोग एडॉप्ट किए थे, उस कल्टीवेशन को ये लोग क्या किए, ब्रिटिशर्स लोग, कि नहीं ये कल्टीवेशन ऐसा नहीं करना है। क्यों, ये लोग का था कि कल्टीवेशन एरिया में परमानेंट सेटलमेंट इन लोगों का हो जाए ताकि ये लोग से ज़्यादा काम लिया जा सके। लेकिन इस पॉइंट पे ट्राइबल्स लोग एग्री नहीं थे और इसलिए इन लोगों को क्या हो गया, सेटलमेंट झूम कल्टीवेशन वाज नॉट वेरी इजी व्हेन द झूम कल्टीवेशन। लेकिन क्या था झूम कल्टीवेशन, इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ये क्या था, झूम कल्टीवेशन टुक टू प्लग कल्टीवेशन वाज नॉट इजी, द रीजन बीइंग, क्या था, इतना आसान नहीं था झूम कल्टीवेशन में, क्योंकि नॉट इजी इन एरिया वेयर वाटर जी, जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी नहीं हो, जहाँ पे वाटर की एबिलिटी नहीं हो, तो उस एरिया में झूम कल्टीवेशन होना मुश्किल था। क्योंकि टेक्निकली वो लोग कोई भी मशीनरी, कोई भी ऐसा हाई एल्डेड ब्रीज सीड्स का यूज़ नहीं करते थे, वो लोग नेचुरली जो भी रहा वो ये लोग यूज़ करते थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में प्रॉब्लम था। They therefore insisted on continuing with their traditional practice when the Britishers refused. They were widespread protests. और जब ये लोग क्या कि ब्रिटिशर्स लोग इनके ऊपर प्रेसाइज करने लगे तो ये लोग क्या कर लें, वाइड स्प्रेड, यानी कि बहुत ये लोग अपोज करने लगे, ट्राइबल्स लोग अपोज करने लगे द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। और क्या हुआ, ब्रिटिशर्स तो लास्टली में क्या हो गया कि अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जब ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे तो ब्रिटिशर्स लोग लास्ट में एग्री हो गए कि ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोग कर सकते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉ, ब्रिटिशर्स का क्या था, अपने अकॉर्डिंगली ये लोग
कोई भी लॉ लेके चले आते थे, कोई भी नया कानून बनाते। फॉरेस्ट लॉ में क्या बना कि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट का प्रॉपर्टी है, इन लोगों का प्रॉपर्टी नहीं है। तो इन लोगों का कोई भी फॉरेस्ट में इंटरफेरेंस नहीं होगा, और जो भी फॉरेस्ट में इंटर करेगा तो उसके बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये ब्रिटिशर्स का फॉरेस्ट एक नया लॉ बना के और ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से ऑलमोस्ट निकाल दिए। फिर क्या आया? ट्रेडिंग आया। ड्यूरिंग द 19th century ट्रेडर एंड मनी लैंडर फ्रिक्वेंटली द फॉरेस्ट रेगुलरली। अब क्या आया? जब जो ट्राइबल्स ऐसे एरिया में रहते थे, फॉरेस्ट एरिया में, वो उन लोगों के ऊपर ट्रेडर्स और मनी लैंडर क्या करते थे, इतना प्रेशराइज करते थे, इतना उन लोगों से काम लेते थे कि ये लोग बहुत ज़्यादा रिवॉल्टेड मूड में आ गए कि नहीं, अब रिवॉल्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस रिवॉल्ट के कारण क्या हुआ? ए सागा ऑफ रिवॉल्ट, यानी कि रिवॉल्ट की क्या स्टोरी है, कैसे ट्राइबल्स लोग के अंदर में ये आया कि नहीं, कि कॉन्फिडेंस आया कि हम लोगों को भी इसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। और इस लड़ाई में कौन साथ दिया? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड, छोटा नागपुर, जो अब पहले बिहार था अब झारखंड बन गया। तो ये बिरसा मुंडा है, उनका साथ दिए, और बिरसा मुंडा के कारण ही ट्राइबल्स लोग का अपलिफ्टमेंट हुआ। और बिरसा मुंडा लास्ट में क्या हुआ? ट्राइबल्स के फेवर में रिवॉल्ट किए। रिवॉल्ट करने के बाद क्या हुआ? बहुत लोग इस रिवॉल्ट में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स जीत गए, ये लोग हार गए। और इसमें क्या हुआ? बिरसा मुंडा लास्टली क्या हुआ कि उनको कलरा हो गया और वो मर गए। और इसके कारण जो मूवमेंट था वो क्या हो गया? फेडेड आउट, यानी कि अब जब मेन लीडर ही नहीं रहेगा तो फिर वो मूवमेंट, वो रिवॉल्ट का क्या, कौन लीड करेगा? लेकिन क्या हुआ? नियरली 350 मुंडा वेयर पुट ऑन ट्रायल। और इस रिवॉल्ट में क्या हुआ? इस लड़ाई में क्या हुआ कि 350 ट्राइबल्स को अरेस्ट कर लिया गया और उनको उस पर ट्रायल यानी कि केस चला, और 3 ऑफ देम हैंग, और 3 लोगों को उसमें से फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा इस रिवॉल्ट का। द गवर्नमेंट अटैम्प्ट टू रिड्यूस द, और गवर्नमेंट क्या करने लगी अब इसके लिए 1902 से 1910 में एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा प्लानिंग की गवर्नमेंट इन लोगों के सेटलमेंट के लिए, और इन लोगों के लिए एक एक्ट लेके आए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1918 प्रोवाइडेड सम रिकग्निशन। और फिर क्या हो गया? जो खून खंटी होता है, जो मतलब कि प्रेशराइज लेबर, तो इसको ये लोग क्या किया? बैन कर दिया कि यहाँ पे ऐसा काम नहीं होगा कि ज़बरदस्ती किसी से काम करवाया जाए। और ये एक्ट लेके आए, और इसके बाद गवर्नमेंट से सेवरल स्टेप, और गवर्नमेंट जो है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा स्टेप उठाई और इनके लिए बहुत सारा काम की मुंडा मिले, सो डैट दे कुड क्विकली अटेंड टू ग्रीवांसेस। और ये लोगों के लिए गवर्नमेंट सोशल, ताकि उनका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस को इंक्रीज़ किया जा सके, डेवलप किया जा सके, इसलिए बहुत सारा राइट उनको भी मिला। और वो लोग को का जो फॉरेस्ट पे जो राइट था वो फिर इन लोगों को एज इट इज़ हैंड ओवर ब्रिटिशर्स लोग कर दिए। इस रिवॉल्ट का 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा। वो क्या पड़ा? फर्स्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉ सो डैट ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन अवे बाई दिकूज। दिकूज मतलब आउटसाइडर, यानी कि आउटसाइडर जो बाहर के लोग हैं, वो लोग ट्राइबल्स को अपने फॉरेस्ट एरिया से बाहर नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, फॉर द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेन। और दूसरा ये भी राइट मिला उन लोगों को कि अगर कोई इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए वो लोग कहाँ, इनजस्टिस के लिए वो लोग अपना देयर एंगर अगेंस्ट देयर कॉलोनियल, यानी कि जो भी कॉलोनियल रूलर है उसके अगेंस्ट ये लोग भी अपोज कर सकते हैं। ये मेन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा इस ट्राइबल रिवॉल्ट में। ठीक, थैंक यू।